Good afternoon, dear students. Today we will learn the first story of our textbook, class 7th. This is NCRT, textbook. And the first story is three questions. Three questions. What does that mean? As we all know, questions means sawal. This story is about a king. The king has three questions. The king thinks of three questions. He thinks that if he knows the answer of three questions, he will be able to be, totally successful in his life. Now, if we read the summary of this story, the story Three Questions by Leo Tolstoy is a story in which a king seeks answers to his three questions. ये जो स्टोरी लिखी है, ये लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने. इस स्टोरी में एक किंग है. इट्स नॉट स्पेसिफाइड विच किंग. इट्स स्पेसिफाइड एज सर्टन किंग, कोई बादशाह जिसका नाम नहीं दिया गया है. He seeks answers to his three questions. Seeks means ढूंढना. वो ढूंढ रहे हैं जवाब. तीन सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं. कौन? ये किंग. He thinks that if he knows the answers of these three questions, he will be able to be successful. He will be able to lead very well his people, the people of his nation, the place that he rules. Now, the first and second paras of this story is story के first and second paras. Like I told you, this is not the textbook. This is the summary that I have brought in. The thought three questions starts the story with a thought that came to the mind of a king. The king thought he would never fail if he knew the answers of the three questions. In the first and second para, a thought, एक ख्याल आता है, comes to the mind of the king. इस बादशाह के दिमाग में एक ख्याल आता है. क्या ख्याल आता है? The king thought he would never fail. किंग सोचता है, बादशाह सोचता है कि वो कभी फेल नहीं हो जाएंगे, कभी नाकाम नहीं हो जाएंगे. If he knew the answers of three questions, अगर उनको तीन सवालों के जवाब पता होंगे. अब ये सवाल क्या है? The three questions were. तीन क्वेश्चन क्या थे? तीन सवाल क्या थे? What was the right time to begin something? The first question was, what was the right time to begin something? कोई भी काम करने का सही टाइम क्या होता है? कोई भी काम शुरू करने का सही टाइम क्या है? ये पहला क्वेश्चन था. Whom should he listen to? और दूसरा सवाल ये था कि ये जो बादशाह था उसको किसकी सुननी चाहिए, किन की सुननी चाहिए इस बादशाह को. ये दूसरा सवाल था. Now the third question was, what was the most important thing he should do? सबसे जरूरी और अहम काम क्या था बादशाह के लिए, जिसको जो उनको करना चाहिए. यानी बादशाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन था. अब ये तीन क्वेश्चंस थे. व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है. होम शुड ही लिसन टू, बादशाह को किसकी सुननी चाहिए. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही शुड डू, बादशाह के लिए सबसे जरूरी काम क्या था. The puzzled king therefore sent messengers to the kingdom and promised a huge sum of money to the person who answered. A puzzled king, ये मतलब हैरान बादशाह. इसने क्या भेजे? इसने मैसेंजर्स. मैसेंजर इज वन हु कैरीज अ मैसेज, जो एक जगह से दूसरी जगह तक खबर पहुंचाता है. इस बादशाह ने अपने मैसेंजर्स भेजे अपने लोगों के बीच में, अपनी इस कंट्री के बीच में जिसको वो रूल कर रहा था. बाकी रियासतों के लिए उन्होंने मैसेंजर्स भेजे ताकि वो लोगों तक खबर पहुंचाए कि अगर बादशाह, जो भी इंसान बादशाह को इन तीन सवालों के जवाब देंगे, बादशाह उसको बेशुमार पैसा देगा.
and promised a huge sum of money to the person who answered it. और उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो बहुत सारा, ढेर सारा पैसा देंगे उस आदमी को जो उनको सही जवाब देगा इन तीनों सवालों का. The third and fourth pair of the story. Money wise men go to magicians. Continues the king's search for the answer to his three questions. Many wise men came to the kingdom and gave various answers. अब जब इन्होंने मैसेंजर्स भेजे, उन्होंने मैसेज पहुंचाया, बहुत सारे वाइज मैन, दाना लोग, अक्लमंद लोग बादशाह के दरबार में, केम टू द किंगडम, बादशाह के दरबार में आए एंड गिव वेरियस आंसर्स. उनने बहुत सारे जवाब दिए. किसी ने एक जवाब दिया, किसी ने दूसरा जवाब दिया, बहुत सारे, क्योंकि सबों के जवाब अलग अलग होंगे. एक ही, मतलब सारे लोग एक ही तरह से नहीं सोचेंगे, तो हर किसी ने अपना अपना जवाब दे दिया. द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन ही गॉट वॉज, जो उसको पहले सवाल के जवाब में मिले, पहला सवाल क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ बिगिनिंग एनीथिंग. कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है. अब उसके बदले क्या जवाब मिले उसको? द किंग शुड फॉलो अ परफेक्ट टाइम टेबल, ओनली दैट वुड हेल्प हिम डू हिज एक्टिविटीज इन प्रॉपर टाइम. Some wise men said it was impossible to decide the right time for something in advance. अब पहले सवाल के जवाब में क्या मिला कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उनको हर काम का टाइम टेबल बनाना चाहिए, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, उसी हिसाब से वो सारे काम अच्छे से कर पाएंगे. ये पहले सवाल के जवाब मिले. Some wise men said it was impossible to decide the right time for something in advance. Some wise men, कुछ चालाक दाना लोगों ने, अक्लमंद लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि हम पहले से ही डिसाइड कर लें कि कौन सा काम कब करना है. ये पॉसिबल ही नहीं है. Some opined that he should notice everything very carefully, avoid foolish pleasure that do whatever seemed necessary at the moment. कुछ लोगों ने ये भी कहा, some opined, कुछ लोगों की ओपिनियन, सोच ये भी थी, दैट ही शुड नोटिस एवरीथिंग, उनको ध्यान रखना चाहिए, वेरी केयरफुली, अवॉइड फूलिश, उनको ज़्यादा ऐश परस्ती नहीं, अयाशी नहीं करनी चाहिए बादशाह को, और डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट मोमेंट, वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पे उनको सही लगे, वही काम करना चाहिए. Yet some said that king would need a group of wise men to help him act properly, while some said it would be impossible for them to decide the right time of every action correctly. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को एक काउंसिल बनाना चाहिए. काउंसिल क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु हेल्प किंग इन डिसाइडिंग द मैटर्स. ये एक जमात होती है, कमेटी होती है लोगों की बनी हुई, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो किंग को मशवरा देते हैं टाइम टू टाइम. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को एक कमेटी बनानी चाहिए, वही किंग को बताएंगे, डिसाइड करके बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए. While some said it would be impossible for them to decide the right time of every action correctly. कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके लिए ये पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है कि वो ये डिसाइड कर ले कि कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम कैसे करना है. Some said the king should seek help from magicians, and so the king rushed to the magicians. कुछ लोगों ने बोला कि किंग को मैजिशियंस के पास, जादूगरों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है आगे क्या होने वाला है. मैजिशियंस को पता होता है, वो ऐसी ट्रिक्स करते हैं. मैजिशियन मीन जादूगर, कि किंग को जादूगरों के पास जाना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, वो उनको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, उसी हिसाब से वो अपना काम डिसाइड कर पाएंगे. Some said the king should only listen to his counselors. Some replied he should listen to the priests, while few said he would choose the doctor. Some said the king should only listen to his counselors. कुछ लोगों ने ये बताया कि किंग को सिर्फ उनकी काउंसलर्स, जो उसके वो काउंसलर्स है, जो उसके सलाहकार होते हैं, उनकी सुननी चाहिए. Some replied he should listen to the priest. कुछ लोगों ने बोला कि उनको प्रीस्ट्स की सुननी चाहिए. ना प्रीस्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे इमाम होते हैं, मजहबी लोग, जो पादरी होते हैं,
ये जैसे हिंदू धर्म के पुजारी होते हैं, क्रिश्चियनिटी के पादरी होते हैं, तो उनको जो ये रिलीजियस लोग हैं उनकी सुननी चाहिए. वाइल few said he should choose the doctors, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर्स ज़्यादा दाना होते हैं, अक्लमंद होते हैं, तो उनकी सुननी चाहिए. एंड yet some said the king should rely on the soldiers, कुछ लोगों ने बोला कि किंग को ज़्यादा भरोसा अपने सोल्जर, अपने फौजियों पे करना चाहिए, क्योंकि वही उनकी जंग लड़ते हैं. नाउ ही दिस इज़ द फॉर द सेकंड क्वेश्चन कि बादशाह को किसकी सुननी चाहिए. कुछ लोगों ने बोला काउंसलर्स की सुननी चाहिए, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, कुछ लोगों ने बोला सोल्जर्स की सुननी चाहिए. ठीक है. द आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चन ही गॉट वॉज, नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या था. तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन के जवाब क्या मिले उनको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या था बादशाह के लिए. अब देखो तीसरे क्वेश्चन के लिए जो ये लोग आए उन्होंने क्या जवाब दिया. He should regard science as the most important thing, while some choose fighting and some replied on religious worships. अब what is the most important thing for king to do, ये तीसरा क्वेश्चन था. कुछ लोगों ने भी बोला कि he should rely on science, उसको साइंस पे भरोसा रखना चाहिए किंग को. while some choose fighting, कुछ लोगों ने बोला कि किंग को फाइटिंग वो उसको जंग लड़ने चाहिए, जंग के ज़रिए वो अपनी इस जो कंट्री जहाँ पर वो रूल करता उसको डिफेंड कर पाएंगे. सम रिप्लाइड ऑन रिलीजियस वर्शिप्स, किंग को रिलीजियस वर्शिप्स पे ध्यान देना चाहिए, उसको इबादत करनी चाहिए. द किंग वॉज कम्प्लीटली पजल्ड एंड नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द वेरियस आंसर्स. अब ये जो किंग थे परेशान हो गए, क्योंकि अलग अलग जवाब मिले तीनों क्वेश्चंस के. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं हो गए. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, वो मुतमईन नहीं हो गए, और उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया. जो उसने प्रॉमिस किया था कि जो सही जवाब देगा तो उसको इनाम देंगे, उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया. सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट who was known for his wisdom and knowledge. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जाएंगे किसके पास, हर्मिट. अब हर्मिट क्या होता है, ये वो अकेला इंसान होता है, अकेला रहता है, लेकिन ही इज रिलीजियस, वो बहुत वर्शिप करता है, काइंड ऑफ सेंट, काइंड ऑफ सेंट बोलते हैं हम, जो बिल्कुल अलग रहता है, इबादत करता रहता है अपने भगवान की, अपने अल्लाह की, अपने खुदा की. उसको हर्मिट बोलते हैं. हर्मिट इज वन हु लिव्स, हर्मिट इज अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड, जो बिल्कुल अकेले रहता है, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन. किसके लिए, रिलीजियस रीजन, यानी इबादत करने के लिए वो बिल्कुल अकेले रहते हैं. अब वहाँ पर भी एक हर्मिट थे, तो किंग ने वो डिसाइड किया कि ही विल गो टू दैट हर्मिट. ये हर्मिट जो था वहाँ पर, ये सेंट जो था वहाँ पर, ये जाना जाता था, मशहूर था. किसके लिए, फॉर हिज विजडम, अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर था, एंड नॉलेज, और इनको बहुत सारा नॉलेज था. तो किंग ने डिसाइड किया कि ये इस हर्मिट के पास जाएंगे. द हर्मिट लेफ्ट lived in a jungle alone and attended only simple people, so the king put on ordinary clothes and left his horse and bodyguard. अब ये जो हर्मिट थे ये वहाँ कहाँ पर रहते थे, ये जंगल में रहते थे, अकेला रहते थे, और ये सिर्फ सिंपल मामूली आम और लोगों से मिलते थे. ये बादशाहों इन बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलते थे. तो फिर किंग ने क्या किया, किंग ने क्या किया, सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, उन्होंने बिल्कुल मामूली कपड़े पहने, एंड लेफ्ट हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड एट द, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल मामूली से कपड़े पहने, और उन्होंने अपने घोड़ा और जो उनके साथ बॉडी गार्ड थे उनको बाहर ही रखा. एज द किंग रीच द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड. जब ये किंग पहुंचे इस हर्मिट के हट के पास, झोंपड़े के पास, इस जंगल में, उन्होंने क्या देखा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड. उन्होंने देखा ये जो हर्मिट था, ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, ये ज़मीन खोद रहे थे, ये ज़मीन खोद रहे थे. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड विथ हिज वर्क. जब ये किंग बादशाह उनके पास पहुँचे तो हर्मिट ने क्या किया, ही ग्रीटेड द किंग. ग्रीट मीन्स वेलकम, जब कोई हमको मिलता है हम उसको सलाम करते हैं, राइट. तो हर्मिट ने भी बिल्कुल उनको ऐसे ही किया, गुड आफ्टरनून बोला, हेलो बोला, या कुछ और बोला होगा. तो उन्होंने ये ग्रीट किया किंग को, एंड कंटिन्यूड विथ हिज वर्क, और अपना काम जारी रखा.
The hermit was old and weak and breathed heavily. ये जो hermit था, he was old, बूढ़े थे, and weak, कमजोर थे, and breathed heavily, क्योंकि ये काम कर रहे थे, ये जोर जोर से सांस ले रहे थे ऐसे, क्योंकि ये थके थे, he was tired. The king went to the hermit and told that he was confused and had come to know the answer to 3 questions. The king went to the hermit. King hermit के पास गए. Told, उन्होंने hermit से कहा, he was confused, कि वो confused हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं, and had come to know the answer of 3 questions, और वो आए थे अपने 3 सवाल लेके जिनका उनको जवाब चाहिए. The hermit listened to the king but did not reply and continued with his work. The hermit ने सुना बादशाह ने क्या कहा, but did not reply, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, and continued with his work, और अपना काम जारी रखा. The king told the hermit to allow him to dig for the hermit as he was tired. अब किंग ने क्या देखा कि ये बूढ़ा आदमी था, थका हुआ था, तो किंग ने उनसे क्या कहा कि आप ये जो जिससे वो खोद रहे थे, जिसको हम स्पेड बोलते हैं यानी बीलचा बोलते हैं, आप ये स्पेड उनको दें, वो हर्मिट की मदद करेगा और किंग खोद लेगा. उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया किंग ने. The hermit thanked the king and gave him the spade and rested on the ground. hermit ने थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा, और जो ये स्पेड था ये किंग के हाथ में दिया और खुद नीचे बैठ गए आराम करने के लिए, जमीन के ऊपर बैठ गए. The king had dug 2 beds and then he stopped. अब किंग ये जो इन्होंने 2 बेड खोद दिए, जो बेड हम ऐसे पार्क लॉन में बना देते हैं जहाँ पर हम फिर फूल वूल उगाते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे 2 बेड बनाए. And he stopped. जब इन्होंने 2 बेड बनाए, he stopped. किंग रुक गए and repeated his questions to the hermit. इन्होंने फिर से अपने questions repeat किए, किसको, hermit के लिए, क्योंकि किंग आया था, बादशाह आया था जवाब जानने के लिए अपने 3 questions का. The hermit stood up but gave no answer. लेकिन hermit खड़ा हो गए लेकिन जवाब नहीं दिया. He stretched his hand and asked for the spade. इस hermit ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि ये spade आप मुझे दो. The king did not give the spade and continued to work. लेकिन king ने ये spade नहीं दिया और अपना काम जारी रखा. He worked for an hour. करीब करीब 1 घंटा किंग काम करता रहा. The sun was about to set down and the king stuck the spade at the ground and murmured that he had come to know the answer to his question but got none. 1 घंटा हो गया. अब जो सूरज था ये भी ढलने लग गया था. The sun was about to set down, almost ढलने को आया था ये sun, सूरज. The king stuck the spade at the ground. उन्होंने ये spade जो था एकदम stuck, उन्होंने झोंक दिया, उन्होंने धकेल दिया spade को किस में, ground में. And murmured, और हल्की सी आवाज में फिर से कहा that he had come to know the answer to his questions but got none. क्योंकि वो आए थे अपने questions का जवाब ढूंढने के लिए लेकिन उनको जवाब नहीं मिला. The king then told that if the hermit won't be able to answer him, he should say him to leave. तो किंग ने hermit से कहा कि अगर hermit को जवाब नहीं देना है, उसके सवालों का जवाब नहीं देना है, तो वो मुझे बता दें कि आप जाओ तो मैं निकल जाऊंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा. The hermit sees someone running to them and shouted. इतनी ही टाइम में hermit ने देखा कि कोई आदमी उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था, तो इन्होंने shouted, चिल्लाया. The king turned and saw a man who was wounded in the stomach. जब hermit ने ये कहा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो किंग ने जब अपना turned his head, उन्होंने ऐसे मोड़ दिया, अपना सर मोड़ दिया, तो उन्होंने क्या देखा, saw a man who was wounded in the stomach. तो किंग ने क्या देखा कि उनकी तरफ एक आदमी आ रहा था, who was wounded, जो जख्मी था. wounded means जख्मी, in the stomach, उनके सीने में ऐसे पेट में जख्म लगा हुआ था. He was bleeding and panted and fell down. He was bleeding, उनका खून बह रहा था. bleeding means खून बहना, and panting means बेहोश होना, to lose consciousness. To lose consciousness को हम fainted बोलते हैं, यानी बेहोश होना. And fell down, और ये गिर गए.
The king and the hermit removed his cloth and saw a wound in his stomach. अब ये जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने उसके कपड़े खोल दिए तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में जख्म लगा हुआ था. The king washed and covered the wound with a handkerchief, but it was still bleeding. अब किंग ने उसका वो साफ किया वहाँ पर वो जख्म और अपनी हैंडकरचीफ जो उसके पास रुमाल थी उससे कवर कर दिया. But the bleeding did not stop. ये जो खून था ये रुक नहीं रहा था. The king finally dressed the wound and it stopped bleeding. उन्होंने बार बार ड्रेस करते रहे उस वूंड को, जख्म को बार बार वो ड्रेस करते रिड्रेस करते रहे. ड्रेस मीन्स बार बार फिर पट्टी लगाना, मरहम पट्टी की. इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, जब तक उनका खून रुक गया. द मैन वॉज फीलिंग बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब ये जो जख्मी आदमी था वो थोड़ा ठीक हो गए तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए. द किंग गेव हिम सम फ्रेश वाटर. ये जो किंग था उन्होंने कुछ पानी लाया इस वूंडेड मैन के लिए. द सन हैड ऑलरेडी सेट. अब सूरज डूब गया था. द वूंडेड मैन वॉज लेड टू बेड. इन्होंने उठा के जो वूंडेड मैन था, जख्मी आदमी था, उनको अंदर हट में लेके गए और बेड पे लिटा दिया. द किंग वॉज वेरी टायर्ड. ही ले ऑन द ग्राउंड एंड स्लेप्ट. क्योंकि किंग भी थके हुए थे, उन्होंने काम भी किया और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो ही वॉज ऑल्सो टायर्ड, तो ही ऑल्सो स्लेप ऑन द ग्राउंड. वो वही नीचे सो गए. He woke up in the morning and saw the wounded man lying on the bed. जब सुबह हो गई और ये बादशाह जब जग गए तो उन्होंने साइड में देखा ये जो वूंडेड मैन था, जख्मी आदमी था, वो सो रहे थे किस पे? बेड पे, जबकि किंग नीचे सो रहे थे जमीन पे. The wounded man asked forgiveness from the king. The king was surprised and said he did not know him and had nothing to forgive. जब वूंडेड मैन ने किंग को देखा, he asked for forgiveness from the king. वो किंग से माफी मांगने लगे. The king was surprised. किंग हैरान हो गए, ये किस चीज़ के लिए मुझे माफी मांग रहे हैं. And said he did not know him and had nothing to forgive. और किंग ने फिर कहा यार मैं तो उनको जानता भी नहीं और मुझे किस चीज़ के लिए इनको माफ़ करना है, मैं किस चीज़ के लिए इनको माफ़ी दूँ. The wounded man then told that he knew the king very well. अब ये जो wounded जख्मी आदमी था उन्होंने कहा कि वो बादशाह को अच्छी तरह से जानते हैं. The wounded man was the enemy of the king as he had killed the latter's brother and even seized his property. अब ये जो wounded man था ये कौन था? ये दुश्मन था इस बादशाह का. क्यों दुश्मन था? क्योंकि जो बादशाह थे उन्होंने उनके भाई को मारा था. एंड इवन सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, जो उनका माल, ज़मीन, जायदाद सब ये सीज किया था, जब्त किया था. एक तो ये जो वूंडेड मैन था उनका भाई उसको मारा था, फिर उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनकी जायदाद थी, ज़मीन थी, बाकी प्रॉपर्टी थी, उनको उसको भी जब्त किया था किंग ने. सो द wounded मैन wants to take revenge from him. और ये wounded मैन क्यों आए थे? इनको बदला लेना था. इन्होंने कसम खाई थी कि वो किंग से अपने भाई का बदला लेंगे. He had made his mind to kill the king and so he came to kill the king. उन्होंने बना लिया था, जहन में ठान लिया था इस wounded मैन ने कि उनको किंग को मारना है, और वो आए थे किंग को मारने के लिए. After waiting for a day for the king to come, he came out and got wounded from the king's bodyguard as he could recognize his enemy. क्या हो गया था? ये जो ये wounded man था ये वेट कर रहे थे, उनको पता था कि किंग हर्मिट के पास आ रहे थे, तो ये वेट कर रहे थे कि किंग जब वापस लौटेंगे तो वो उस किंग को मार देंगे. लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, किंग वापस नहीं आए क्योंकि वो रुके थे हर्मिट के पास. ये जो वाउंडेड मैन था ये बाहर आ गया, तो जब बादशाह का जो बॉडीगार्ड बाहर था उन्होंने उनको देखा, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने पहचान लिया कि ये किंग का दुश्मन है, तो इन्होंने उसको मारा. उसी की वजह से ये ज़ख्मी हो गया था, ये वाउंडेड मैन ज़ख्मी हो गया था. After waiting for a day for the king to come, he came out and got wounded from the king's bodyguard. दिन भर इंतज़ार करने के बाद जब इन्होंने देखा कि किंग नहीं लौट रहे तो ये बाहर आ गए, तो किंग के बॉडीगार्ड ने उनको देखा तो उन्होंने इसको ज़ख्मी किया. He would not have been alive if the king would not have saved him. अब अगर किंग उनको नहीं बचाता, उनकी मरहम पट्टी नहीं करते, तो वो मर जाते. क्योंकि किंग ने उनकी मरहम पट्टी की, उनको पानी दिया, ड्रेसिंग की, तब जाके वो वूंडेड मैन बच गए. अगर किंग ऐसा नहीं करते तो वो मर जाते. द वूंडेड मैन कंटिन्यूड दैट ही विल बी
ever grateful to him and served the king as his most faithful servants. The king was very happy to make his enemy his friend. फिर इस wounded man ने कहा कि he will be ever grateful to him. वो जिंदगी भर किंग का ये एहसान नहीं बोलेंगे, वो हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहेंगे किसके, इस किंग के, एंड सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स, और वो हमेशा इस किंग के नौकर बने रहेंगे. कैसा नौकर? फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल नौकर बन के रहेंगे किंग का जिंदगी भर के लिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेक हिज एनिमी हिज फ्रेंड. ये जो किंग था ये बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया था. He promised to treat him by his own doctor and even return the seized property to the wounded man. और किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने डॉक्टर से इनको चेकअप करवाएगा, इनको ठीक कराएगा, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो इवन रिटर्न द सीज्ड प्रॉपर्टी टू द वाउंडेड मैन. जो ये वाउंडेड मैन था उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दे देंगे. Before leaving, the king went to the hermit who was sowing seeds that the king dug the previous day. अब किंग वापस निकलने वाले थे, वापस आने वाले थे, ये फिर से हर्मिट के पास गए. अब ये हर्मिट क्या कर रहा था? जो कल किंग ने वो ज़मीन तैयार की थी, ज़मीन खोदी थी, उसमें सीड्स बो रहे थे. ही वाज सोइंग द सीड्स. सीड्स सीड्स मीने बीज, जो कश्मीरी में ब्यूल बोलते हैं. He was sowing means buna. ऐसे ये काम वावुन या था इसके पेशिर पेट वना च. The king for the last time begged the hermit to answer him before the king left. अब आखिरी बार किंग ने फिर से हर्मिट से पूछा, जिस चीज़ के लिए किंग वहाँ आए थे, अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, इन्होंने फिर से पूछा. The hermit replied to the king that the latter had already got reply to the questions. अब हर्मिट ने उनसे यही कहा. अब हर्मिट ने पहली बार तो जब पिछली बार उन्होंने पूछे थे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने बात की. The hermit replied to the king that the latter had already got reply to the questions. hermit ने कहा आपको तो पहले ही जवाब मिल गए अपने तीनों क्वेश्चंस के. The king was surprised and asked the hermit how did he got the answers. अब ये किंग हैरान हो गए कि कहाँ से मुझे जवाब मिल गए. उन्होंने हर्मिट से पूछा कि कब कैसे मुझे जवाब मिल गए. The hermit then explained the king. फिर हर्मिट ने एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेन किया? That if he had not felt pity on the hermit and helped him, dug and went away, the enemy would have attacked and killed him. कि अगर उनको हर्मिट के ऊपर पिटी, दया नहीं आई होती, तो वो हर्मिट को हेल्प नहीं करते, वो हर्मिट का काम नहीं करते, वो ज़मीन की खुदाई नहीं करते और वापस चले गए होते. और अगर वो वापस चले गए होते, ये जो दुश्मन था, वाउंडेड मैन उनका दुश्मन था, ये वेट कर रहा था उनको मारने के लिए, तो किंग मर गए होते. ये उनको मार देता, ये दुश्मन उनको मार देता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड. तो उस हिसाब से जो सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहम टाइम था, वो कौन सा टाइम था? वही टाइम था जिस टाइम पे किंग ज़मीन खोद रहे थे. वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. द हर्मिट फर्दर एक्सप्लेन दैट ही वॉज द मोस्ट the later had already explained that he was the most important person and helping the hermit was the king's most important task. फिर उन्होंने और एक्सप्लेन किया. जब उन्होंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही था जब वो ज़मीन खोद रहे थे और ज़मीन तैयार कर रहे थे वो बीज बोने के लिए. फिर उन्होंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उस टाइम पे था हर्मिट. सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो उसके लिए उस टाइम पे था वो हर्मिट था. एंड हेल्पिंग द हर्मिट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. और हर्मिट की मदद करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम था किंग के लिए उस टाइम. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब वो ज़मीन खोद रहे थे. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब वो ज़मीन खोद रहे, ज़मीन तैयार कर रहे थे बीज बोने के लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था उस टाइम पे हर्मिट. ठीक है. The hermit very beautifully explained the king that caring for the wounded man was the king's most important time. फिर उन्होंने ये भी बोला कि उसके बाद
किंग के लिए जो सबसे ज़रूरी और अहम टाइम था, अहम काम था, वो कौन सा काम था? केयरिंग फॉर द वाउंडेड मैन की मरहम पट्टी करना, उसका ख्याल करना, वो सबसे ज़रूरी टाइम था। क्योंकि अगर उनने वाउंडेड मैन की मरहम पट्टी, उनका ख्याल नहीं रखा होता तो वो मर गए होते। तो उस हिसाब से द मोस्ट वाउंडेड मैन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और उस टाइम पे वाउंडेड मैन सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी थे। एंड केयरिंग फॉर द माउंटेन मैन वाज द किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस टाइम पे था वो केयरिंग फॉर द वाउंडेड मैन, उस वाउंडेड मैन का ख्याल रखना, उसकी मरहम पट्टी करना। The story draws a very beautiful moral that has been explained by the hermit. अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, मकसद क्या है, इससे सबक क्या है, लेसन क्या मिलता है हमको? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। दैट मीन्स जो सबसे ज़रूरी और अहम टाइम होता है वो नाउ है, अब का टाइम है, अभी इस वक्त जिस टाइम में हम जी रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर एनी वन। क्योंकि हम जो पास्ट, जो टाइम गया है उसके ऊपर हम अफसोस कर सकते हैं। द फ्यूचर, जो आने वाला टाइम, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमको हम फ्यूचर देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। विल नॉट, मे बी वी मे नॉट बी एबल टू सी द फ्यूचर और सी टुमारो, एंड वी कैन ओनली रिग्रेट अबाउट पास्ट के ऊपर सिर्फ हम अफसोस करते हैं। और तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज़रूरी टाइम किसी भी आदमी के लिए है वो है प्रेजेंट, द टाइम ही इज़ लिविंग इन राइट नाउ, अभी का जो टाइम है। क्योंकि हमको जो भी कुछ भी करना है वो अभी कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन किया था हर्मिट ने इनको स्टोरी में, जब वो हर्मिट के पास थे तो उस हिसाब से वो हर्मिट की मदद कर रहे थे, तो काम कर रहे थे ज़मीन में। तो उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था किंग के लिए वो ज़मीन खोदना था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो हर्मिट था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था उस टाइम पे किंग के लिए? हर्मिट की मदद करना, ठीक है। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो किंग वापस आ गए होते, तो वो जो दुश्मन था उन्होंने उनको मार दिया होता। उसके थोड़े टाइम बाद जब वो वुंडेड मैन आ गया, तो उस टाइम पे सबसे ज़रूरी सबसे अहम टाइम कौन सा था कोई काम करने का? वो ये था कि वुंडेड मैन जब किंग के पास आ गए तो उनकी उनकी हेल्प करना, उनकी केयर करना, उनकी मदद करना। क्योंकि वो वुंडेड थे, अगर वो मदद नहीं करते तो मर गए होते। सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था वुंडेड मैन उस टाइम पे, जिनको बचाना था। तो सबसे ज़रूरी काम क्या था उस टाइम पे? व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर किंग टू डू दैट टाइम? वाज टू टेक केयर ऑफ द wounded मैन। वो जो ज़ख्मी आदमी था उनका ख्याल रखना था, जिसकी वजह से वो बच गए। और बिकॉज ऑफ दैट किंग वॉज एबल टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विथ हिज एनिमी हु अदरवाइज वुड हैव किल्ड द किंग। उस वजह से उन्होंने अपने एनिमी के साथ दोस्ती की, अपने दुश्मन के साथ दोस्ती की इस किंग ने। और फिर उनके बीच ऐसी दोस्ती हो गई कि वो जो वुंडेड मैन था उन्होंने बोला कि वो ज़िंदगी भर उस किंग के गुलाम बने रहेंगे, फेथफुल सर्वेंट बन के रहेंगे, रिलायबल मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन बन के, सर्वेंट नौकर बन के रहेंगे। नाउ द लेसन, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट to the answer to these three questions is, what is the right time to begin something? कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है? वो अब का टाइम है। द टाइम दैट वी आर लिविंग इन प्रेजेंट नाउ, दैट मीन्स अब का टाइम है। विच पीपल शुड वी लिसन टू? हमको किन की सुननी चाहिए? वी शुड लिसन टू द पीपल हु वी आर प्रेजेंट राइट नाउ, जो हमारे पास इस वक्त है, हमारे आसपास में इस वक्त है। ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस वक्त जो हमारे पास है, हमारे आसपास में, हमको उनकी सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर एनीवन? सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है किसी भी आदमी के लिए? इज़ टू हेल्प द पर्सन ही इज़ विथ, जो जिसके साथ वो हो उसका भला करना, उसके लिए
अच्छा सोचना, उसके लिए अच्छा करना is the most important thing for anyone to do. This is the moral of this story. This was the summary of this story. The story shares a beautiful message that performing our activities at that moment is important. Future cannot be predicted, and hence living at the moment, helping others is what a person should do. That means we must live in present, in the time that we are living right now. We must help the person we are with right now, and we should listen to the people we are with right now. This was the moral and summary of this story. Tomorrow I'll be taking the text reading of this story. I hope you have understood the summary of this lesson. So tomorrow we'll discuss the text reading of this story. Thanks a lot for attending this class. Thank you so much.